welcome student. Today we will study our next topic of this lecture series of wave optics. Okay, here we will study the next topic, that is the polarization of light. Remaining topics such as the law of reflection, proof for the law of reflection, Huygens principle, law of reflection, law of refraction, This is the first chapter of wave optics. Then after we in the second chapter we had studied the topic Young double slit experiment, expression for the fringe width beta. This is the second chapter. And then the expression for the bright fringe beta equal to n d lambda upon d. Okay, and for dark fringe n minus half d lambda upon d, n minus half d lambda upon d. So this is the second topic which we have discussed already in our previous videos. उसके बाद जो अगला टॉपिक था वो था फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न a sin theta equal to n lambda. We have already covered this topic. Then after the next and the last topic for this wave optics series left is only what is the polarization. What is the polarization? This is the last topic which is left in our syllabus. So today we'll try to cover this topic, and then after we will cover numericals for the remaining topic which we have already discussed so far. So what do you mean by polarization? Polarization nothing. Polarization proves the transverse nature of light. Proves the transverse nature of light. What do you mean by transverse nature of light? Suppose this is the form in which the wave is propagating. Suppose this is the direction of the propagation of light C, and this represents the direction of electric field vector and the magnetic field vector. This represents the direction of electric field vector and the magnetic field vector. So you can notice a pattern that this electric field vector, suppose this is the electric field vector, this is the magnetic field vector, these all are perpendicular to the direction of propagation of light. मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन उनका प्लेन अलग अलग है. कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और ये ऐसा है. आप देखिए, मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट हो गया सपोज ये, तो ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या तो इधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ आ गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है प्रोपगेशन. या फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा हो गया और नीचे चला गया और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसा हो गया. तो ये क्या हो रहा है, प्लेन को चेंज कर रहा है. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर तो है, लेकिन उस क्या कर रहा है, प्लेन उसका अलग अलग है. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर possible in all directions in a plane perpendicular to the direction of the propagation of light, and this propagation of this electric and magnetic field vector which is perpendicular to the direction of propagation of light in a different plane is known as unpolarized light. This is known as unpolarized light. Then what happens if we restrict, अगर हम दूसरी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की जो वेक्टर्स हैं उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर दें और केवल एक ही डायरेक्शन से उस लाइट को पास करें, मतलब अगर हम लाइट को पास कर रहे हैं और दूसरे अदर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं उनके प्रोपगेशन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें और एक सिंगल डायरेक्शन से लाइट को पास करेंगे, तो जो हमें छनी हुई लाइट मिलेगी, जिसे हम कहते हैं ना आम भाषा में बुंदेलखंडी में छनी हुई लाइट, उसे क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट. उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट. एंड द प्लेन इन विच दिस वाइब्रेशन ऑकर नोन एज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. एंड द प्लेन इन विच दिस वाइब्रेशन ऑकर नोन एज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज दिस इज अ प्लेन and this is the unpolarized light. This is the transverse view of polarized light. Suppose this is the transverse view of polarized light, and this is the transverse view of unpolarized light. This is the transverse view of unpolarized light. Unpolarized light है, उसके प्लेन वेक्टर हर डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, लेकिन हर डायरेक्शन में है कि नहीं. ठीक. अब इसी को जब एक सिंगल किसी और दूसरी डायरेक्शन में इसके प्रोपगेशन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, मान लो हम ऐसी चीज से पास कर रहे हैं जो हमारा मान लो जो लाइट को छान रहा है उसका ऐसा है, ये है मान लो ग्रेटिंग. अब आप कहेंगे ग्रेटिंग क्या है, ग्रेटिंग मतलब
एक ऐसा रीजन जहां से लाइट पास हो पाएगी, बाकी दूसरी डायरेक्शन में लाइट को क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा दूसरे डायरेक्शन में। मतलब एक तरीके से हमने केवल लाइट को इस रीजन से पास कर देंगे, मतलब ये वाला वेक्टर ही पास हो पाएगा, दूसरे डायरेक्शन के लिए क्या जगह ही नहीं है कि वो पास कर पाए। तो जो हमारी लाइट छन के आ गई इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइज्ड लाइट। इसे क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट। और यहाँ पे हम इसे मोर एप्रोप्रिएटली बोलेंगे ट्रांसवर्स वर्जन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। सो ऑर्डिनरी लाइट का अगर हम व्यू लें तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर लाइट की ये है तो इस तरीके से शो होगा, और अगर ये प्लेन है इस तरीके से तो जो पोलराइज्ड लाइट है वो हमारी इस तरीके से निकलेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट बेसिकली होता क्या है, पोलराइजेशन में क्या फिनोमेना होता है ऑर्डिनरी लाइट। आप इसको और बेसिकली समझ सकते हैं, आप बहुत ही बेसिक से समझें तो घरों में जो मम्मियां लोग जो होती हैं वो चलनी जिसमें गेहूं से कंकड़ निकल जाता है, गेहूं बाहर निकल जाता है और कंकड़ को दूसरी जगह फेंक देती हैं, जिस तरीके से वो गेहूं का वो चालने वाला जो होता है, समथिंग लाइक दैट वैसे ही है। जो सन की लाइट निकली उसे क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट। और जो हमारी जो ऑर्डिनरी पूरा सब जो प्लेन परपेंडिकुलर प्रोपगेशन द डिफरेंट प्लेन्स में along the direction of the propagation of light, उन्हें क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, unpolarized light. We will try to analyze the phenomena of polarization. So, the device which allow the process of polarization to occur through them known as polarized. उन्हें क्या बोलते हैं, पोलराइज। ऐसी डिवाइस जिनके थ्रू पोलराइजेशन ऑकर होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलराइज। बेस्ट एग्जांपल है पोलराइड का क्वार्ट्ज क्रिस्टल। एक हेक्सागोनल शेप का होता है, हेक्सागोनल शेप का क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। ये मान लो एक ऑप्टिक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारी ऑप्टिक एक्सिस। ये ऑप्टिक्स एक्सिस का क्या मतलब है, ये वो डायरेक्शन है या ये ऑप्टिक एक्सिस वो है, वो एक लाइन है जिससे हमारी लाइट क्या हो जाएगी, छन जाएगी या पास हो जाएगी। विच अलाउ द ऑर्डिनरी एंड पोलराइज्ड लाइट of this particular direction to allow to pass through this. So suppose this is the propagation of the motion of the light and suppose this is the electric and magnetic field vector which are perpendicular. अब आपको लग रहा होगा 90 डिग्री नहीं, लेकिन हमने बोल दिया 90 डिग्री है तो है, आपको मान लेना पड़ेगा। डायग्राम क्या है, प्लेन को शो करना 2D में 3D को शो करना पॉसिबल नहीं है। तो ये मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ लाइट पास हुई 90, तो हमारी क्या होगी, केवल उस डायरेक्शन वो मतलब वो लाइट की वो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पास होंगे जो इसके परपेंडिकुलर है। क्योंकि यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं, ये हो सकता है ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। ये है जरूरी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन प्लेन चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारी लाइट के वेक्टर्स कुछ निकल के आए, वो कौन से वेक्टर निकल के आए, जो इसके पैरेलल है। तो ये हमारी लाइट की पोलराइज्ड लाइट हमारी निकल के आई, और ये क्या थी हमारी अनपोलराइज्ड लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। अब हमने क्या किया, हेक्सागोनल जो हमारा शेप है क्रिस्टल C1 माना, उसको हमने C2 की पोजीशन को चेंज कर दिया। तो हमारा क्या, किसी एंगल से हमने चेंज किया, तो हमारा मान लो A क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। A क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, जनरली बोर्ड में आता नहीं है, लेकिन इसी ईयर आया था बोर्ड में, ऑप्शनल में था, ज्यादातर बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन आ सकता है, ठीक है, इस साल ही आया। तो हमने इसको क्या किया, C2 क्रिस्टल को क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया डायरेक्शन को। तो हमारा क्या होगा, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो गया A cos थीटा इस डायरेक्शन में, और एक हो गया A sin थीटा। जो A sin थीटा वाला कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा हमारा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब ये कंपोनेंट वाला जो लाइट का वेक्टर है ये हमारा पास नहीं होगा, केवल हमारा A cos थीटा ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारा पास होगा। तो हमारी जो नई इंटेंसिटी, पहले जो हमारी इंटेंसिटी मान लो लाइट जो निकल के आई वो क्या थी, I नॉट। जो पोलराइज्ड लाइट निकल के आई उसकी इंटेंसिटी क्या थी, I नॉट। तो जो नई इंटेंसिटी लाइट की निकल के आएगी वो क्या होगी, I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका डेरिवेशन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल में, अभी हमें कुछ नहीं जानना, हमें बस इतना जानना है कि जो नई इंटेंसिटी लाइट की आएगी पोलराइज्ड लाइट की, अगर हम अपने पोलराइड को किसी एंगल थीटा से चेंज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। एंड दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मेलस। इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मेलस। सीधे हम एक्सप्रेशन को याद रखना है। तो मान लो अगर हमने एंगल थीटा वहां 30 डिग्री है और पहले इंटेंसिटी कुछ गिवन है कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, और पहले जो इंटेंसिटी दी है उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो हमारी नई वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द व्हाट डू मीन बाय पोलराइड, और गिव एन एग्जांपल ऑफ पोलराइड
एंड हाउ पोलराइड हेल्प्स। अच्छा, एक और नया कॉन्सेप्ट, अगर हम पोलराइड को, एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड में आया था, व्हाट हैपन, आप लिखिए, मुझे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, टाइम वेस्ट होगा। व्हाट हैपन इफ द पोलराइड इज रोटेटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 2 पाई 360 डिग्री, 0 डिग्री टू 2 पाई, तो हमारा क्या होगा अगर हम किसी पोलराइड को पूरा रोटेट करते हैं 0 डिग्री से 360 डिग्री तक रोटेट करते हैं तो क्या होगा, तो लाइट इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम ट्वाइस, 2 बार मैक्सिमम होगी और लाइट इंटेंसिटी 2 बार मिनिमम होगी। मिनिमम कहां होगी, 90 डिग्री और 270 डिग्री, और मैक्सिमम कहां होगी, 0 डिग्री और 180 डिग्री, और भी कैसे 360 डिग्री। सो यही यहां पर क्या हो जाएगा, मिनिमम कहां होगी, पाई और 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या 0 डिग्री और पाई पे। तो दिस इज द वे हाउ यू नीड टू अप्रोच इन दिस टॉपिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलराइजेशन एंड द लॉ ऑफ मेलस। And now the next topic which is very important from the examination point of view is what do you mean by Brewster law? Brewster law क्या होता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में अक्सर इसके क्वेश्चन आते हैं हमारे, 2 मार्क्स का आता है, और बहुत ही यही एक लॉ है जिसपे हमारा कुछ न्यूमेरिकल भी आता है। तो ब्रूस्टर लॉ को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा, जब भी कोई लाइट है उसमें रिफ्लेक्शन जो होता है तो उसमें कुछ फिनोमेना पोलराइजेशन का भी होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं कह रहा हूं जब भी रिफ्लेक्शन होता है लाइट का तो उसमें पोलराइजेशन का फिनोमेना भी होता है। कैसा पोलराइजेशन होता है, पार्शियली, थोड़ा बहुत पोलराइजेशन होता है। तो जिस एंगल पे रिफ्लेक्शन, जिस एंगल पे हमारा पोलराइजेशन ऑफ फिनोमेना शो कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। सो द एंगल एट विच the polarization occur during the case of reflection known as angle of polarization. So I hope all of you are most aware of what do you mean by this angle of polarization. So what happened, what does Brewster law state? Brewster law state draw, this is a normal, so normal should be imaginary in this manner. You must be very careful while drawing the diagrams. So Brewster law state at certain angle of polarization, certain, why it is certain, because at which the polarization happen, or you can skip this word certain, you can directly write at angle of polarization, means at the angle at which this polarization occur, the reflected and refracted ray are perpendicular to each other. Reflected and refracted ray are perpendicular to each other. This is all about the statement of the Brewster law. Very easy. At certain angle of polarization, the refracted and reflected ray are perpendicular to each other. So suppose this is the angle of polarization. Suppose this is the angle of polarization IP. This is the ray unpolarized. So at certain angle of polarization, this is the reflected and this is the reflected and this is the refracted. So some ray get polarized and some will get reflected. So these two reflected and refracted ray must be 90 perpendicular to each other. The reflected and refracted ray must be perpendicular to each other. There must be a 90 degree angle between the reflected and refracted. Suppose this is the, suppose you can ऐसे imagine कर सकते हैं आप 100 है, तो 100 में से मान लीजिए 40 रिफ्लेक्ट हुआ, 60 क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ पोलराइजेशन हुआ एट सर्टेन एंगल पे, उसे क्या बोलेंगे हम, आईपी। आईपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो हम जानते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये आईपी है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आईपी। और ये क्या हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो अगर हम ये ए इसे मान ले ओ और इसे मान ले सी, तो एन ए ओ सी वी नो वेरी वेल आईपी प्लस 90 प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियरली आईपी 90 और 180 डिग्री, तो वी नो वेरी वेल आईपी प्लस एंगल आर इक्वल टू 90। यहाँ पे हमारे एक प्रूफ मिल गया कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल गिव यू द वैल्यू that is equal to 90 degree, and we know very well mu equal to sin I upon sin r. So sin I equal to sin IP and sin R equal to sin
90 minus IP. From here we can clearly write R equal to 90 minus IP. So this can be written as sin IP, and sin 90 minus IP equal to cos IP. That can be written as tan IP. So that will give you the value of refractive index, mu equal to tan IP. Refractive index of the material through which the reflection occur. Okay. सो न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं इस चैप्टर से बहुत ही इजी पूछे जाते हैं. क्वेश्चन ऐसा आता है कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन 32 डिग्री है. बोर्ड का क्वेश्चन है. मैं लास्ट में अगले नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा वेव ऑप्टिक्स के सारे न्यूमेरिकल. तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? सो यू नो वेरी वेल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 90 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 58 डिग्री. ये आता है बोर्ड में 1 नंबर का एमसीक्यू. पिछले साल आया था क्वेश्चन. बहुत ही इजी ऐसे क्वेश्चन आते. आईपी 30 डिग्री है. आप बताइए एंगल ऑफ हमारा रिफ्लेक्शन कितना होगा? 58 डिग्री. कोई कहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो म्यू इक्वल टू tan IP. तो IP इक्वल टू क्या होगा? tan IP. तो tan 32 डिग्री आप लिख दीजिए. तो ये हमारा क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा. तो इसका जो न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है पोलराइजेशन वाले चैप्टर से, उसका लेवल बस इतना ही है. केवल उसके बाद दो फॉर्मूले हैं, IB plus R equal to 90 degree and mu equal to tan IB. These are the two formulas which are basically used in this topic. And law of Malus, basically sometime it must be included in our syllabus, sometime it may be skip our syllabus. So you must remember one formula, I equal to I naught cos square theta. This is all about the chapter, this polarization. So on next video we will study some question and numerical which are basically as in our board examination related to YDSE and Fraunhofer single slit diffraction pattern. That's all for today. Thank you.